From the list given below, identify those competencies of an effective teacher which relate to the domain of personality and attitude. So, those competencies of a teacher which are related to domain of personality and attitude. See, personality and attitude is one domain and skill is another domain. When you talk about management, when you talk about communication, when you talk about teaching the subject properly, all these are skills of the teacher. But when you talk about control, when you talk about enthusiasm, those are personality domains. So, locus of control, yes, this is personality domain. Communicating is a skill, not a personality domain. Managing is also a skill, not a personality domain. Attitude domain. Self-efficacy, yes, this is personality and attitude domain. Teacher enthusiasm, yes, as I told you. Being organized, orderly, this is all a skill that is learnt. So, the answer is A, D and E. Let us find out where is A, D and E. I hope it is clear. Let us move on to the next question. Which of the following are rhetorical techniques for structuring classroom communication? बच्चों, rhetorical का मतलब होता है सजावटी techniques. When you decorate your language, that is called rhetoric, decorative, right? ये शायर कवि होते हैं, इनकी भाषा अच्छी क्यों लगती है हमको? We like some people who are good orators because their way of speaking, the words they use are rhetoric. So, rhetorical technique means decorative techniques of classroom communication. How do you decorate your classroom communication? One, you talk about that topic which is interesting to the students. Two, you teach from known to unknown. Three, you keep on giving positive reinforcements to the students. Four, you motivate the students, right? So, all these are rhetorical techniques. Relating the day's topic to students' interests, yes, that's a rhetoric technique. Providing scattered information, no, you should provide complete information, wrong. Smooth transition from one idea to another, yes, this is correct. Student को पता भी ना चले, unknown से unknown की तरफ चले जाओ. Avoiding the use of artifacts, no, you should use artifacts. Using media to improve the quality aspect of reception of messages, yes, you should use media and you should use teaching aids. That increases your classroom communication. Opting for one-way communication, no, one-way communication is not good in classroom communication. So, the answer is A, C and E. Where is A, C and E? This is your answer. I hope it is clear. Let us move on to the next question. Question number 3. In the sets, 2 sets, we have different levels of teaching, then we have the focus of concern. See, memory level is memorizing, understanding level is understanding, problem raising and problem solving. This is reflective level. D. Affects and feelings, no. Recall of facts and information, memory level. Seeing relationship among facts and their examples, understanding level. Peer learning. Peer learning means you are learning, but peer learning is learning with other persons, collaborative learning है. And इतनी देर में तो आपका आंसर आ गया. B is 3, C is 4, D is 1. There is only one option. और effects and feelings autonomous development level है. So, we have the answer with us. B3 एक में ही है बच्चों, ये रहा, और C4 and D1 and A मैंने बताया था 2, effects and feelings. तो peer learning तो गलत है, peer learning तो this is A, third, affects and feelings. So this is your matching the table. Next question.
तो बच्चों ये एलिमिनेशन मेथड जो है बहुत अच्छा मेथड होता है, जिससे आप तुरंत एक या दो भी अगर आपको आ जाते हैं तो तुरंत आंसर आप फटाफट कर सकते हो। रिजेक्शन एंड सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस्ड? मेमोरी लेवल लोअर लेवल है, ये तो हायर लेवल है तीनों ही। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ असेसमेंट द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑप्टिमम? बच्चों इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप ड्यूरिंग टीचिंग ही कर सकते हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन जो है उसमें आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक वर्ड में छुपा है आपका आंसर। इंट्रिंसिक मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग। इंट्रिंसिक मतलब उसके अंदर इम्प्लिसिट है। नेक्स्ट, पढ़ाते वक्त ही आप मोटिवेट कर सकते हो, पढ़ाना खत्म करने के बाद नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिपिक्ट्स आउटकम बेस्ड करिकुलम डिजाइन फॉर कॉलेज लेवल टीचिंग प्रोग्राम? अगर आपको कॉलेज लेवल टीचिंग प्रोग्राम में आउटकम बेस्ड करिकुलम डिजाइन पता करना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आउटकम चाहते क्या हो, डिजायर्ड आउटकम क्या है। सो द फर्स्ट थिंग इज नॉट कंटेंट, द फर्स्ट थिंग इज डिजायर्ड लर्निंग आउटकम। ये आपका फर्स्ट होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग तो बाद में आता है, कंटेंट भी बाद, पहले आता है डिजायर्ड लर्निंग आउटकम डिसाइड करो, फिर उसके बाद कंटेंट बनता है, फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आता है और उसके बाद असेसमेंट और इवैल्यूएशन आता है। सो द आंसर इज बी। I hope it is clear now. Next question. Which of the following evaluation systems belongs to the category of being an innovative practice? देखो बच्चों, innovative practice मतलब आजकल के जो नए evaluation systems चल रहे हैं। Traditional evaluation systems क्या थे? Taking a test after the teaching process, और एनुअल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, पीटीज, पीरियोडिकल टेस्ट, रिकॉर्ड देखना स्टूडेंट्स का पूरे साल का, ये सब ग्रेडिंग्स, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम्स है। नए इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है? ग्रेडिंग और नंबरों से मतलब नहीं है, स्टूडेंट ने लर्निंग कितना किया, दैट इज इनोवेटिव इवैल्यूएशन। सेमेस्टर एग्जाम्स तो ट्रेडिशनल है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो हर बार करते ही आए हैं, पोर्टफोलियो हमेशा पूरे सालों से बनाते आए हैं। लर्निंग आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन इज न्यू आउटकम, न्यू टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, जहां पे लर्निंग आउटकम क्या आया स्टूडेंट का, नंबर चाहे कम आए लेकिन अगर उसने सीखा, अगर उसकी नॉलेज बढ़ी है, लर्निंग आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन जो है वो लेटेस्ट इवैल्यूएशन मेथड्स है, इनोवेटिव है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। 8th, द पर्पस ऑफ आईसीटी यूज इन एजुकेशन। देखो बच्चों, आईसीटी हो चाहे कोई भी टीचिंग एड हो, पर्पस एक ही है, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, टू इंक्रीज लर्निंग प्रोसेस so that the learning process becomes maximum. That is the only reason why teacher uses teaching aids, ICT. ICT means information and communication technology. That's a teaching aid used by the teacher. अभी जो मैं करा रहा हूँ ये क्या है? ICT बेस्ड ही तो है। कैमरे का यूज़ कर रहे हैं, PPTs का यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, मार्कर का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ये सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, हम ऐप का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, ये सब ICT है, टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग। So what we want is to optimize learning outcome. अट्रैक्ट नहीं करना स्टूडेंट्स को, टीचिंग को इंटरेस्टिंग नहीं बनाना, एम नहीं है, एम ये है, और प्रमोट टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट नहीं करना हमको, है ना। ओके, नेक्स्ट 9th, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड डायलॉगिको। डायलॉगिको मतलब दोज टीचिंग मेथड्स विच हैव इंटरैक्टिव प्रोसेस। जैसे लेक्चर मेथड है, डायलॉगिको नहीं है, क्योंकि उसमें टीचर बोलता है, स्टूडेंट सिर्फ लिखता है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, डायलॉगिको नहीं है। टीम टीचिंग, डायलॉगिको नहीं है, सिर्फ टीचर पढ़ाता है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्वेश्चन आंसर सेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, ये सब डायलॉगिको। इसमें स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन होता है। ट्यूटोरियल्स, कोचिंग जो होती है, ये डायलॉगिको होती है ना, ये सब डायलॉगिको है। डेमोन्स्ट्रेशन डायलॉगिको क्यों नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग डायलॉगिको है। चॉक एंड टॉक मेथड, ये तो डायरेक्ट टीचिंग है।
टीम टीचिंग बिल्कुल डायरेक्ट टीचिंग है। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, हाँ ये डायलॉगिको है। इंटरैक्टिव आ गया ना जिसमें, ट्यूटोरियल्स ये डायलॉगिको है। सो बी, ई एंड एफ आर डायलॉगिको, जहां पे इंटरैक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर का, वो डायलॉगिको कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the context of classroom teaching, the foundation on which a warm and nurturing relationship with learners. देखो बच्चों, warm and nurturing relationship with learners, मैंने आपको बताया था 3 तरह की टीचिंग होती है। एक होती है कॉग्निटिव टीचिंग, है ना, एक होती है इफेक्टिव टीचिंग, अफेक्टिव, डोमेन है अलग अलग, और एक है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव टीचिंग में सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर से मतलब होता है। अफेक्टिव टीचिंग में यू वांट टू डेवलप अ वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट, और साइकोमोटर में यू वांट टू ट्रेन द स्टूडेंट, ट्रेनिंग पार्ट ज्यादा आता है इसमें, स्किल्स पार्ट आता है। तो ये जो वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप है ये अफेक्टिव टीचिंग में आती है, टीचर अफेक्ट, प्रोबिंग में नहीं आता कभी भी। आप प्रोब करके कभी रिलेशनशिप नहीं बना सकते। स्ट्रक्चर ऑफ फीडबैक इज नॉट करेक्ट। स्ट्रक्चरिंग फीडबैक तो हर तरह की टीचिंग में होता है। सो दिस इज योर आंसर।